सर आ रही है आवाज? हाँ, आ रहा है सर। हाँ। मैं स्टार्ट कर देता हूँ, फिर आपको होस्ट बना देता हूँ। यस यस। रिकॉर्डिंग मेरे इधर हो ही रहा है। हेलो। हाँ सर, बना दिया आपको होस्ट। हाँ हाँ हाँ। आई विल स्विच ऑफ माई वीडियो एंड ऑडियो। Okay. So let us start with the topic and continue with the topic that is called as nothing but isomerism का last portion we were discussing. I don't think there is any problem in geometrical isomerism. Optical isomerism we have started one. क्या बोला था? Those compounds which are having asymmetry will show optical isomerism. सोचो, those compounds which are asymmetrical, तो मैं उसमें से स्टार्ट किया था। पहला कैसा था? कंपाउंड शुड हैव all four groups different, but there are so many compounds in which all functional groups are different, but they are not showing optical isomerism. And there are so many other compounds where there is no four groups, but they are showing chiral one, है ना? तो उसमें से मेरे पास पहला था क्यूमुलेटेड एलीन्स, इंपॉर्टेंट वन। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये आ सकता है। ठीक, क्यूमुलेटेड एलीन्स। देन आफ्टर इंपॉर्टेंट वन इज बाइफेनिल कंपाउंड्स। बाइफेनिल कंपाउंड्स हो सकता है तुम लोग का टेस्ट वगैरह दिया होगा तो उधर आएगा, मिला होगा। बट व्हाट इज द कंडीशन? इसका ऑर्थो पोजीशन मस्ट बी ब्लॉक्ड वन। ऑर्थो पोजीशन must be blocked one. Blocked in the sense there must be group present. There must be group present. Already IIT में आया हुआ है एंड सेम प्रॉब्लम उठा उठा करके नीट वाले लोग रख रहे हैं ऐसा। और तो उन्होंने 4 फंक्शनल ग्रुप दिया था, I mean 4 ABCD ऑप्शन दिया था। दिस वन इज शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दिस वन इज शोइंग ऑप्टिकल isomerism. Now the important one is again this is called as spiro compounds. Okay, now spiro compounds में group present on this one must be different. Group present on this must be different one. हो क्या रहा है पता है? Because of repulsion ये group become perpendicular, one cycle become perpendicular to each other. ऐसा ऐसा समझ लो।
कि दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर। तुम ऐसा समझो कि तुमने दो नोटबुक रखे थे, नोटबुक नोटबुक, तो एक नोटबुक को तो ऐसे ही प्लेन में रखने दो, और दूसरे वाले नोटबुक को तुमने उठा करके दिस बिकम परपेंडिकुलर टू दिस वन इन द प्लेन, है ना? दिस बिकम परपेंडिकुलर, दिस बिकम परपेंडिकुलर, that's why they are not symmetrical one. If they are not symmetrical one, they will show optical isomerism. तो ये सब ऐसे कंपाउंड्स हैं, they are not chiral center, they are not having any chiral center, but they are showing optical isomerism. This is again cycloalkane, that is cyclohexane, उसके बाजू में डबल बॉन्ड हो, अगेन क्या होगा? फिर से देखो, nobody will write anything. Because of repulsion, this become perpendicular. There is no symmetry. If there is no symmetry, then it will show optical isomerism. If there is no symmetry, then it will show optical isomerism. So there are so many compounds, 1, 2, 3, पढ़ाते हैं तुम लोग, पढ़ा होगा, 4 types, 5th type, 6th, and this is 7. Okay, if you are solving higher level of MS Chauhan, that is especially for the IIT, then you will get all these questions in that one. Okay, chalo, this is optical isomerism they are showing, but how will you calculate? I mean, how will you predict this is D form or this is L form? Okay, how will you predict this is D form or L form? तो कैसे करेंगे? तो एक होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, वन इज रिलेटिव, यस सर वो जो आपने बोला ना कि कायरल सेंटर नहीं होता है लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, तो वो बाइफेनाइल कंपाउंड्स और स्पाइरो दोनों के लिए होता है ना? हाँ, दोनों के लिए है. This one will show optical isomerism, this will show. All 7 forms are showing optical isomerism. ओके सर. All 7 forms are showing optical isomerism. Okay. ओके सर, थैंक यू सर. Now we are going to predict what will be the configuration. So one is called as relative configuration. Relative, that is with respect to. How it is with respect to? This is OH. Now this one is OH and this one is CS2OH. इसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं. कैसे? If specially organic compound having this unit, तो second last carbon, this is 1, this is 2, second last. तो functional group is CHO, naming will be 1, 2, 3, 4. तो this unit, if any molecule or compound having this kind of unit and OH is right side, OH is right side, so this is called as D form, dextrorotatory. And if OH is, that is second last OH, that is second last OH is left side, then it will be L form. D form and L form, dextrorotatory and levorotatory. Dextrorotatory and levorotatory. Dextrorotatory and levorotatory.
On the basis of that, you all are from bio background, अवनी को छोड़ करके, तो this is structure of glucose biomolecule chapter. This is structure of glucose. अब this is structure of glucose 1 2 3 4. Now this is 5 and this one is 6. Okay, now second last carbon OH is right side, that's why this is D glucose. कहीं कहीं पे D प्लस ग्लूकोज करके लिखेगा, वही चीज है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज। ठीक, अब इसी में CHO OH H, this is again OH. Now if it is written, then it is L form, then it is L form. So D form and L form of glucose, D form and L form, D form and L form. Now what is problem? तुम लोगों ने पेंटोज शुगर पढ़ा हुआ है, पेंटोज शुगर, again the same problem. One, two, three, 4 and 5. So this is ribose, this is ribose sugar, but कैसा है? D, D ribose. क्यों? Second last OH is right side. It is alpha and beta is decided on the basis of first carbon OH, जो अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया है, but second last carbon OH से you will define D and L. Now the biggest disadvantage of this method is, suppose this compound is containing NH2, now this is containing Br, suppose this is containing CH3 and H, then how will you predict this is D form or L form? So this is the drawback. ठीक है, that's why we are coming to the relative configuration की जगह पर now we are coming to absolute configuration. What is absolute configuration? It is not defined with respect to any other carbon. So इसमें हम लोग क्या करते थे? Group priority. Group priority is given on the basis of molecular mass. Br highest, then nitrogen is attached, second, third is carbon, and fourth is hydrogen. So this is 1 2 4 3. Fourth priority must be on vertical line. This is the rule. Fourth वाला must be on the top or bottom. तो तुम क्या करो, ऐसा भूल जाओ कि कोई ग्रुप था 1 2 3. Now start with 1 2. So this is एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग इसी को अब एल फॉर्म या तो फिर एस कॉन्फ़िगरेशन. एस, एस का मतलब होता है सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट साइड, सिनिस्टर का मतलब है लेफ्ट साइड. सिमिलरली अब यहां पर देखो, यही फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट इट इज प्रेजेंट ऐसा, हाइड्रोजन CH3 OH NH2. Now start with this carbon chiral.
highest atomic weight which is attached with the carbon is oxygen 1, nitrogen 2. This is decided on the basis of atomic number, atomic mass. This is 3, this is 4. प्रॉब्लम ये है कि मैंने बोला था फोर्थ प्रायोरिटी मस्ट बी ऑन वर्टिकल लाइन. अगर नहीं है तो दो चीज है, लेंथी मेथड रहेगा, फॉरगेट अबाउट दैट. क्या करो, डायरेक्ट निकालो, 1 से 2 जाओ हमेशा एंड उसका अपोजिट लिख दो. अगर इफ फोर्थ वाला इज हॉरिजॉन्टल लाइन तो उसका अपोजिट लिख दो. अगर ये आर है तो दिस बिकम एस. पहले सब लोग बोलो हाँ या ना, समझ में आया क्या? यस और नो? यस सर. अगर वर्टिकल लाइन पे है डायरेक्टली राइट वट एवर यू आर गेटिंग. इफ इट इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन राइट अपोजिट वट एवर यू आर गेटिंग. ओके, तो फोर्थ प्रायोरिटी must be on vertical line. If it is not a vertical line, suppose it is present on horizontal line, whatever you are getting, suppose you are getting R form, original will be S form. If you are getting S form, original will be R form. Opposite of that, opposite of that. Now इसी का ही सपोज अगर मैंने ऐसा ले लिया, दिस इज OH COOH, this is OH and COOH. There are two chiral centers. तो अब मुझे प्रेडिक्ट करना है व्हाट इज R फॉर्म एंड S फॉर्म फॉर दिस वन. तो इसके लिए क्या हो गया, फर्स्ट इज O, ऊपर क्या है COO, नीचे क्या है CO, फिर से नीचे C, दिस इज H एंड H. ऐसा जस्ट फॉर द प्रेडिक्शन. दिस इज फर्स्ट. नीचे चलो, ये देखो C, ऊपर क्या मिला C, सेम. उसके आगे जाओ, यू आर गेटिंग O, यू आर गेटिंग O. Now you are getting C, you are getting O. So second priority is this one, third priority is whole group. Whole group is third one, and fourth is on horizontal line. Now forget fourth. 1 2 3 4. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. This is anti-clockwise, but fourth priority is on horizontal line, so this must be R form. This must be R form. अगर कहीं पर भी सिमेट्री दिखाई दे रहा मिरर का, ये देखो नीचे, so this is called plane of symmetry. This is called as plane of, and if you are getting any plane of symmetry within the compound, तुम उसका जस्ट अपोजिट लिख सकते थे. इन फ्यूचर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, बट यहाँ पर इससे आगे बढ़ो. दिस इज कॉल्ड एज ये वाला सेंटर, दिस इज कॉल्ड एज दिस सेंटर. ओके, ना इधर से गया O, नीचे गया CO, ऊपर वाला पूरा ग्रुप CO, that is COOH, है ना. Highest priority is given to CO first, then C, ऊपर C, then right O, but in this one is having CO and ऊपर is C. So again highest priority is 1 2 3 4. Again 1 2 3. So this is R form, original is S form. देख लो, they are mirror image of each other. They are mirror image of each other. तो मैं कुछ सेपरेट ना लेकर के मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ. These compounds are called as
mesomers. These compounds are called as mesomers. These compounds are called as mesomers. ठीक है, they are not optically active. Why? This is rotating clockwise and half of the portion downward anti-clockwise. Net rotation of the compound is zero. Net rotation of the compound is zero. नेट रोटेशन ऑफ द कंपाउंड इज जीरो. ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं मीजोमर. ठीक, अब आ जाओ बेटा, मैं जानबूझ करके नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग such kind of notation. Suppose this is OH, this is CH3, this is Br, this is Cl. ओके, अब देखो, अगर नोट कर रहे हैं तो नोट करना बंद करो. तुम समझ लो यहां से देख रहे हो, तुम इधर से देख रहे हो, तो जो Cl है और Br है वो तो वर्टिकल लिख दो. ठीक, अगर तुम यहाँ पे खड़े होकर के देख रहे हो, खड़े हो जाओ इसी पर, तो तुम्हारे राइट में क्या है, बोलो सभी लोग, राइट में क्या है, राइट में OH और CH3, राइट में बोलो, राइट में क्या है, राइट में हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं फिशर में. दिस इज राइट, दिस वन इज लेफ्ट. जहां से तुम देखना स्टार्ट कर रहे हो, तो राइट में तुम्हारे है तो राइट में इसको करो, लेफ्ट में इसको करो. मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर. सर मतलब उस आँख के जो राइट साइड को होगा उसे राइट साइड पे लेना है, और उस आई के जहां पर्सपेक्टिव से से तुम जो देख लेफ्ट. रहे हो, जहां से तुम क्या करो, ये देखो तुम खड़े हो गए हो, तुम खड़े हो गए, ठीक, देखने के लिए, तो तुम्हारे राइट में क्या है, OH. ये ये क्या है, ये लेफ्ट है. यस और नो? यस सर. हाँ, तो राइट में क्या रखो, OH, इधर क्या रखो, CH3. इसी का फिशर प्रोजेक्शन का वेज एंड डैश हो जाएगा. ये फिशर प्रोजेक्शन का वेज एंड डैश, और ये वेज एंड डैश है. तो अब देखो, बोलो प्रायोरिटी बोलो, इधर से किसको, Br1, Cl2, दिस इज 3, दिस इज 4. तो क्या हो जाएगा, फोर्थ को फॉरगेट अबाउट 4, 1 2 3. ये R फॉर्म आ रहा है, तो ओरिजिनल क्या रहा होगा, S, Y S. फोर्थ प्रायोरिटी इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, फोर्थ प्रायोरिटी इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन. तो तुम यहीं पे निकालो, फॉरगेट अबाउट फिशर से डैश, वेज एंड डैश, और वेज एंड डैश टू फिशर. दिस इज कॉल्ड एज फिशर प्रोजेक्शन. दिस इज कॉल्ड एज वेज एंड डैश. दिस इज कॉल्ड एज वेज एंड डैश लाइन. चलो, फॉरगेट अबाउट दैट, नंबरिंग करो. Br1, Cl2, OH is 3, this is 4. Okay? Cl, Br, OH,
ऐसा। एक मिनट, कुछ तो देयर इज समथिंग मिस्टेक, अदरवाइज प्लीज वेट। तो दिस इज 1 2 3, 1 2 3 में 1 मिनट के लिए प्लीज वेट। 1 2 and 3, 1 2 and 3, this is called as 4, this is called as 3। ये क्या है, वेज डैश का मतलब क्या हो गया, बिलो टू द प्लेन। दिस इज बिलो टू द प्लेन, दिस इज बिलो टू द प्लेन। अब क्या करो, जब भी, और फोर्थ प्रायोरिटी मस्ट बी बिलो टू द प्लेन। फोर्थ प्रायोरिटी आई सेड मस्ट बी बिलो टू द प्लेन, और है भी। दैट्स व्हाई दिस इज 1 2 and 3। So this is R form. This is R form. Hmm. This is R form. This is R form. तो थोड़ा सा क्या, स्लाइड चेंज प्लीज। हाँ, आ जाओ, सॉरी। यहां से हम लोग देख रहे हैं, इधर से यहां से देख रहे हैं, तो 1 2 3 4, एक जस्ट अ मिनट प्लीज। दिस इज 1 2 3। हाँ देखो, सॉरी, क्या करो, जहां से देख रहे हो ना, कहां से देख रहे हो तुम, यहां से देख रहे हो। चलो, तो ये तुम्हारे सर पास राइट में दिख रहा था। हाँ सर हम डिटरमाइन कहाँ से कैसे करेंगे कि कहाँ से देखना है मतलब? हाँ, मैं वही बोलने जा रहा था, प्लीज अच्छा वेट। अच्छा, सॉरी। जहाँ, हाँ, जहां पर भी ना ये वेज एंड डैश है, वहीं से देखना है। समझ में आया? यस सर। 1 मिनट के लिए इसको चाहो तो थोड़ा, मैं फिर से वापस आओ, या ये समझ में आ रहा है? नहीं सर, समझा। मुझे यहां से, मैं वापस आता हूँ फिर से। सपोज दिस वन इज H, दिस वन इज OH। यहां से देखो, यहां से देखना है ना, इधर से देखना है। अब बोलो, कोई प्रॉब्लम है तो? हाँ या ना? मैं तो बोलता हूँ चलो और भी ले लो, दिस वन। तो जो भी हो, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, ABCD। दिस इज ABCD, ABCD, है ना? ABCD। चलो आ जाओ, अब इसको ले जाओ, कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो।
हाँ, कन्वर्ट कैसे करो? दिस इज ए बी सी डी, दिस इज ए, दिस इज बी, तो दिस इज बी, दिस इज ए। तुम्हारे लेफ्ट में ये दिख रहा है, लेफ्ट में एच, राइट में ए दिख रहा है। इधर चलो, ए बी, और इधर क्या है? सी। इधर क्या है? इधर से देख रहे हो ना? इधर से देख रहे हो? इधर से देखो, तो दिस इज डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर डॉक्टर। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. तो यही चीज अब ऊपर करना है, यही चीज ऊपर करना है, यही चीज ऊपर करना है। ठीक है? यस और नो? यस सर। चलो, अब सपोज इसी में मेरे पास दो दो दिए हैं। एक होता था मेरे पास इनहेंशियोमर। क्या होता है इनहेंशियोमर बोलो? मैं पहले डेफिनेशन टाइप का करवा देता हूँ, सबको पता है। इनहेंशियोमर्स क्या होंगे? दे आर मिरर इमेज होता है। मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, बट नॉट क्या? सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। दिस इज OH, दिस इज H, दिस इज CH3, दिस इज Cl। मिरर रखने पर ये ऐसा दिखाई देंगे। ठीक, मिरर रखने पर ये एक दूसरे के अपोजिट दिखाई देंगे। इसी में एक होता है क्या? डाइस्टीरियोमर। ये बोल रहा है नाइदर मिरर इमेज एंड नॉर सुपर इम्पोजेबल। ओके, नाइदर मिरर इमेज, नाइदर सुपर इम्पोजेबल। जैसे, तो नाइदर मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोजेबल के लिए चाहो तो इंपॉर्टेंट लिख करके रख सकते हो, सिंगल कायरल सेंटर में होगा ही नहीं। क्यों पता है? ये देखो, 1 2 3 4, ऐसे रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस इज आर, वाई आर, फोर्थ ग्रुप इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो तुम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे एस। तुम क्या करो, इसको उठा करके ऐसा लिख दो, ठीक है ना? Cl एंड OH। तो तुम इसको डाइस्टीरियोमर नहीं बोलोगे इसके रेस्पेक्ट में। दिस इज नॉट द डाइस्टीरियोमर। क्यों? क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि दे आर नॉट मिरर इमेज, नॉट सुपर इम्पोजेबल। अरे बाबा, आइदर आर होगा, आइदर एस होगा ना। इसलिए एक काइरल सेंटर का विल बी ऑलवेज इनहेंशियोमर, नॉट द डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर होने के लिए मिनिमम तुमको 2 काइरल सेंटर होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एज टार्टेरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एज टार्टेरिक एसिड। ये बोलो, दिस कंपाउंड एज, बोलो, मिरर इमेज है क्या? डाइस्टीरियम। डाइस्टीरियोमर्स, COOH। now this is OH,
H COOH। अब बोलो 1 and 2 and 3। बोलो 1 and 2 क्या है? डायस्टीरोमर्स। 1 and 3। डायस्टीरोमर्स। 1 and 4। 1 and 4। बोलो 1 and 4। तो अब अगर मैंने गलती से ब्लाइंडली ऐसे सिर्फ देख देख करके बोलना स्टार्ट कर दिया कि नॉइदर मिरर इमेज नॉट, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरे पास पेयर नंबर 1 2 3, 1 2 3 आईआईटी में आया था और पूछा था क्या है। लेकिन अब मैं इसी को तुमसे ऐसे ही 5 बना के पूछ दूं कि 1 and 5 क्या है, तो तुम इमीडिएटली बोलेगा कि दे आर डाइस्टेरियोमर्स। दिस में भी राइट और इसमें भी रॉन्ग। पता है क्यों? अब देखो क्यों। अरे बाबा, इसका पहले तुम वो तो निकालो। क्या दिस इज OH1 इस कार्बन का, COOH2 3 4 कैसा दिखाई दे रहा है? S। तो दिस इज R एंड दिस वन इज मिरर इमेज, तो दिस वन इज R। अब देखो ये मिरर लग रहा है इस वाले कंपाउंड इतना तक के लिए, दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ऊपर वाला पोर्शन। तो अगर ये S है तो ऊपर वाला इज R, है ना? और नीचे वाला इज सेम, नीचे वाला इज सेम। फिर से देखो ऊपर वाला, यहाँ का ऊपर वाला इज सेम एज दिस वन, सो दिस इज R form, दिस इज R form, दिस इज R form। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। एंड जो इतना है दिस इज अपोजिट ऑफ नीचे वाले का। यस और नो? मिरर रखो इसके लिए, यस और नो? ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये वाला, ये वाला सेम, दिस वन, दिस वन। उफ, यहां से ऊपर S है तो नीचे भी क्या हो जाएगा? S। हाँ या ना? Yes, sir. यस। फोर्थ में जाओ, फोर्थ के लिए प्रायोरिटी दो। फोर्थ के लिए प्रायोरिटी क्या है? OH1 COH2 3 4, this is 2 3 R, so original is S, since fourth group is on horizontal line। okay? एक एक थोड़ा सा इधर क्या मिस्टेक है ये वाले में, सॉरी। फर्स्ट वाले का इस वाले पोर्शन को देखो एंड इस वाले को देखो, दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। यहाँ का देखो, इसको कंपेयर करो प्लीज। इफ दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, OH राइट था फर्स्ट में एंड थर्ड में OH इज लेफ्ट, दैट्स व्हाई I'm writing without any calculation, just opposite of first one, opposite of first one। चलो इसको देखो, ये किस कहाँ पे है सर ऐसा? जो फर्स्ट वाले का नीचे वाला पार्ट है और जो थर्ड का नीचे वाला पार्ट है हाँ वो दोनों मिरर इमेज होगी ना? हाँ, they are mirror image, that's why S हाँ। का R1 देखो। हाँ।
यस सर। चलो, अगर ये ऐसा है, फोर्थ वाले को पकड़ो, फोर्थ। बोलो, ये ऐसा है क्या स्ट्रक्चर कहीं पर 1 2 में? है ना? 1 वाला देखो, सेम एज। यस और नो? यस सर। नाउ, नाउ फिफ्थ वन, ऊपर वाला पोर्शन कहीं पे है क्या ऐसा? इन विच वन? फर्स्ट वन फर्स्ट। एंड थर्ड वन। So this is R. Okay. But what about this one? Chiral center. So you can calculate it. 1 2 3 4. 1 2 3. This is anti-clockwise. So this is clockwise. अब बोलो, किसी को प्रॉब्लम है क्या? अब मैं आता हूं कॉन्सेप्ट पार्ट पर। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट पार्ट? चलो, लिखना बंद करो प्लीज। राइट, प्लीज डू नॉट राइट, प्लीज डू नॉट राइट। पता है, अगर आर का आर दिखाई दे, ऊपर वाला फर्स्ट वाले का ये एस है, और ये एस दिखाई दे तो सेम हो गया। ठीक। अगर आर का एस दिखाई दे और एस का आर दिखाई दे तो क्या हो जाएगा? बोलो। इनशोमस। एंड इफ, भाई ये वाला फर्स्ट कार्बन का है, ये वाला सेकंड कार्बन का था। फर्स्ट वाला कार्बन आर, सेकंड वाला एस। अगर ये आर है और यहाँ पे एस दिया है तो क्या हो जाएगा? किसी भी तरीके का कोई सिमेट्री नहीं है, तो बिकम डाइस्टीरियोमस। पहले बोलो, जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। भाई, दोनों का रोटेशन सेम रहा तो कंपाउंड इज सेम। दोनों का रोटेशन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रहा, then they become enantiomer. And if there is no matching, ये देखो, R इधर R, इधर S इधर R, नो मैचिंग। फिर से देखो, R का सपोज S का S है, is there any matching? No. So this is matching in the sense there is any relation. There is any relation in the sense R का R, S का S, so this is same. And if it is just opposite of that, then become enantiomer. Now, who will tell me 1 and 2 are डायस्टीरियोमर्स। 1 and diastereomer. 1 and 3 डायस्टीरियोमर्स। 1 and 4 डायस्टीरियोमर्स। 1 and 5 डायस्टीरियोमर्स। diastereomers. सर But और हाँ, अभी देखो, इधर देखो। सर 3 और 4 जो होगा वो सेम होंगे ना फिर? हाँ, मैं वही बोलने जा रहा हूँ, पहले देखो तो। सॉरी सॉरी। Now 2 and 3, 2 and 3, 2 and 3, सेम। no,
एस का बिकम आर, एस का बिकम आर, एस का बिकम आर, they are just equal and Sorry, opposite of rotation. enantiomers. Then yes, so this is enantiomer. Now 2 and 4, 2 and 4 Same. सेम, दोनों के दोनों का सेम रोटेशन. 2 and 5 Enantiomer. they are enantiomer. Now 3 and 4 Enantiomer. 3 and 4 R का S, S का R, so they are enantiomer. Then 3 and 5 Same. Enantiomer. same, no, same. R का R, R का R. तो मुझे ये बताओ, ऐसे ही मैं ब्लाइंडली देखता विदाउट एनी रोटेशन, देन देर इज नो सिमेट्री, देर इज नो मिरर इमेज. तो मुझे दिखने से क्या लगता है, इन अपीयरेंस 3 and 5 is diastereomer, but is it correct one? No. नहीं है ना. What about 4 and 5? Enantiomers. बस दिखने में एक दूसरे के क्या लग रहे हैं बताओ. Diastereomers. फिर इसलिए मैं ब्लाइंडली ठीक कभी भी नहीं ठीक. बोलता. फर्स्ट गिवन कंपाउंड्स का RS रोटेशन देखो. If they are just opposite of each other, then they will be enantiomer. And if there is no correlation is coming out, then it is Diastereomers. बस. नोट करना है, मैंने बना किया था, अब नोट कर सकते हैं, करना है तो, नहीं तो मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ. डन. डन. हाँ या ना, कोई आवाज नहीं आ रही है. Yes sir, हो गया. हाँ हो गया. हाँ. पहले प्रोसीड फॉरवर्ड. Yes sir. चलो, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम है. ठीक है ना. एंड इफ देयर इज नो प्रॉब्लम वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड. इफ देयर इज नो प्रॉब्लम वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड. चलो. चलिए आइए. तो अब मैं ब्लाइंडली नहीं देख के करूंगा. ठीक है ना. ब्लाइंडली देख करके नहीं करूंगा. अच्छा चलो, तुम लोग ये बोलो कि दिस वन इज
OH, H, CH3. Now this is H. अब क्या हो जाएगा? और ऐसा ना लिख करके चलो ऐसा कर दिया, CH3 and OH. ये डाइस्टीरियोमर है क्या? बिल्कुल भी नहीं। पता है क्यों? एक ही कार्बन है। तो अगर दिस इज 1 2 3 4 रोटेशन, दिस इज R फॉर्म, बट दिस वन इज एक्चुअली में S फॉर्म। इसमें करके देखो, दिस इज 1 2 3 4 वर्टिकल लाइन है, तो ये S है, तो S ही रहेगा। कहीं से भी मिरर इमेज नहीं लग रहा था, बट its optical rotation is S form. That's why this is enantiomer of each other. याद रखना। अरे बहुत होता तो S का S आता, इस वाले का सॉरी S का S ही आ रहा ना, तो दिस इज सेम। बहुत होता तो R आता फॉर्म। अगर R आता तो दे बिकम enantiomer of each other. तो whenever one chiral center is taken, then it may be same compound और इट में बी enantiomer. डाइस्टेरियोमर दिखने में लगेगा कि है, बट एक्चुअली में नहीं होगा। मैं क्या बोला समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Yes. नाउ इसी में मेरे पास, अब इसी में मुझे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कराना है। आता है या डायरेक्ट लूं? जल्दी बोलो। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, शैल आई टेक? जल्दी जल्दी बोलो, यस और नो। सर आप ले लो। ले लूं, ठीक है। तो दिस वन इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ऐसे ही ब्रीफ में ले रहा हूं बस मैं। इसमें क्या हो रहा है? ड्यू टू रोटेशन था अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड, है ना? वहां पे क्या हो रहा था कॉन्फ़िगरेशन में? पता है क्या हो रहा था? एक कार्बन के अराउंड ग्रुप्स को रोटेट करा रहे थे, अप डाउन लेफ्ट राइट। यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड रोटेट कराना है, ठीक है ना? तो इन ब्रीफ मैंने क्या ले लिया? दिस वन इज CH3 दिस इज C bond. हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स? ऐसा। अब तुम क्या करो, इसको कार्बन नंबर 1, इसको कार्बन नंबर 2। तुम ये ऐसा समझो, कार्बन नंबर 1 से टॉर्च जला रहे हो, है ना? कार्बन नंबर 1 से टॉर्च जला रहे हो, कार्बन नंबर 2 फुटबॉल है, एंड कार्बन नंबर 1 टेनिस बॉल है। दिस इज टेनिस बॉल, दिस इज फुटबॉल। तो क्या होगा? टेनिस बॉल का प्रोजेक्शन फुटबॉल पर आकर के गिरा। अब मुझे 1 and 2 दिखाई नहीं दे रहे हैं, दैट इज द बॉन्ड। दिस 1-2 bond is not clearly seen if 1 and 2 को मैंने प्रोजेक्ट किया तो। now 1 is attached with hydrogen, 2 is attached with hydrogen, and hydrogen. This is called as Newman projection.
This is called as Newman projection. This is called as Newman projection. अब मेरे पास जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है 1 and 2. ये तुम्हारे ऊपर है 1 किसको ट्रीट कर रहे हो 2 किसको ट्रीट कर रहे हो, है ना. 1 and 2 इसलिए लिया है ताकि बड़ा क्लियर पिक्चर आए. दिस इज 1, this is 1 and this one is 2. Now 1 is attached with CH3 left side, 2 hydrogen present on first carbon. Now 2 is attached with right side CH3 and 2 hydrogen which is not same. Now this is called as 60 degree 60 degree. तो यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर मैं 1 2 3 4 ऐसा कर दूं, एक्सचेंज कर दो थोड़ी देर के लिए, तो दिस इज 2 एंड दिस इज 1. अगर ये सपोज R होगा तो ये S हो जाएगा. आफ्टर वन एक्सचेंज R become S, S become R. Same thing is here also. मैंने फर्स्ट वाले को पकड़ लो और सेकंड वाले को पकड़ लो, ऐसा किया. 2 क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल. क्रिकेट बॉल को मैंने पकड़ लिया, क्रिकेट बॉल को मैंने पकड़ लिया इसको, और इसको स्टार्ट रोटेटिंग, या ऐसा स्टार्ट रोटेटिंग स्टार्ट रोटेटिंग स्टार्ट रोटेटिंग. और रॉड इज नॉट रोटेटिंग, टेनिस बॉल इज रोटेटिंग, टेनिस बॉल इज रोटेटिंग. अगर टेनिस बॉल इज रोटेटिंग आई एम एक्सपेक्टिंग कि समझ में आ रहा है. 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री, बट 1 2 से आइडिया नहीं लग रहा है. सो प्लीज रोटेट इट बाय 60 डिग्री, रोटेट इट बाय 60 डिग्री. तो बिगर कार्बन hydrogen and CH3 is not changing its position, but this one is now coincide with hydrogen. CH3 is reaching to this carbon and this carbon, that is hydrogen. This is called as eclipsed form. This is called as eclipsed form. फिर से 60 डिग्री का रोटेशन कर दो, फिर से अगेन 60 डिग्री रोटेशन बाय फिक्सिंग बिगर कार्बन. बिगर कार्बन को फिक्स करके रखो. नाउ दिस वन is CH3 are nearer to each other now. Now if bigger groups are nearer to each other, adjacent to each other, are called as gauge form. Again, if you rotating it by 60 degree, keeping bigger circle as a constant, then now again coinciding CH3 with CH3 perfectly, H with H, H with H. So this is fully eclipsed form. This is fully eclipsed form. Now again if 60 degree is rotated, मैं रिएक्शन वगैरह स्टार्ट करूंगा तो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फियर फैक्टर है 100% मैं गायब कर दूंगा.
क्योंकि ये तो पढ़ सकते हो, अपने से भी कर सकते हो, लेकिन रिएक्शन अपने से बिल्कुल नहीं कर सकते। तो दिस इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। Now again 60 degree is rotated, then bigger carbon will remain as it is. Bigger carbon will remain as it is. Now CH3 reaching on this carbon. This is hydrogen. This is hydrogen. This is again gauge form. This is partially eclipsed form. After rotation of 60 degree, this is reaching to the same carbon. बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? Which one will be the most stable? Which one will be the most stable? And all are called as conformers. All are called as conformers. तो ये देख रहे हो फुल्ली इक्लिप्स, CH3 के बिल्कुल पास आ गया है, इसीलिए यहाँ पर रिपल्सन विल बी हाईएस्ट. दैट्स व्हाई दिस इज फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म. देन यहाँ पर पार्शियली इक्लिप्स्ड में भी दे आर नियरर टू ईच अदर, बिल्कुल कोइंसाइड कर रहे हैं. देन gauge form and highest is called as staggered form. This is least stable. This is called as staggered form. Okay, this is called as staggered form. अब बोलिए सबसे ज्यादा स्टेबल ये रहा, तो एनर्जी क्या हो जाएगा? एनर्जी इज अपोजिट ऑफ दैट. एनर्जी ओह, मैंने बिल्कुल उल्टा लिख दिया, एक्सट्रीमली सॉरी, बिल्कुल अपोजिट लिखा है. तो दिस वन इज एनर्जी. जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना लेस स्टेबल होगा, इसीलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर शुड बी अपोजिट ऑफ दैट. सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी. तो दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर. अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. तो स्टैगर्ड फॉर्म का स्टेबिलिटी हाईएस्ट, then gauge form, then partially eclipsed form. Fully eclipsed form is least stable because of repulsion. Because of repulsion. Because of repulsion. Because of repulsion, it is least stable. Because of repulsion, it is least stable. Because of repulsion, it is least stable. हो सकता है ये ड्रॉ करने में तुम लोग को टाइम जाएगा, तो ड्रॉ करना है या मैं आगे बढ़ूं? बोलो. फिर आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ. इसमें से ही दिस इज 0, 60 degree rotation, again 60 degree rotation, again 60 degree rotation, एंड 360 को फिर से वहीं पे आ जाएंगे. 0 पर क्या था? एनर्जी स्टैगर्ड का सबसे कम. ओके, 60 डिग्री रोटेट किया था, 60 डिग्री रोटेशन पे 60 degree rotation, so this become eclipsed, that is partially eclipsed. This is sorry, partially eclipsed. This is partially eclipsed form. Partially eclipsed form का energy is staggered के बाद
This is partially eclipsed form. Again rotate कराया था 180 पर, that is 60 degree. Then this become gauge form, and 60 degree के again rotation से this become fully eclipsed form. एक बार ये सब देखना मैं क्या बोल रहा हूँ. सर एंड प्लीज हाँ बोलो. सर और स्टैगर्ड फॉर्म में हमेशा सेम ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट ही होगा ना? हाँ, बड़े बड़े बल्कि ग्रुप विल बी अपोजिट टू ईच अदर. ओके सर, थैंक यू सर। फिर से 300 किया, फुल्ली इक्लिप्स के बाद क्या आया? गॉज फॉर्म. गॉज फॉर्म के बाद फिर से 360 करोगे. स्टैगर्ड पार्शियली इक्लिप्स्ड, सॉरी स्टैगर्ड 120 पर, पार्शियली इक्लिप्स्ड 180 पर, फुल्ली इक्लिप्स्ड मैंने थोड़ा सा दिस इज 180 पर फुल्ली इक्लिप्स्ड. फुल्ली इक्लिप्स के बाद नाउ गॉज फॉर्म. गॉज फॉर्म के बाद पार्शियली इक्लिप्स्ड. ये क्या कर रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है क्या? आई वॉन्ट टू ड्रॉ एनर्जी डायग्राम लाइक दिस वन. अगर नहीं समझ में आता है तो मैं खत्म कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, एकदम से खत्म कर देता हूँ. ये लो, एक बार नहीं खत्म. क्या करना था पता है? एनर्जी 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 का डायग्राम मैं कर रहा था. पहला स्टैगर्ड 60 डिग्री रोटेशन पार्शियल इक्लिप्स, अगेन 60 डिग्री रोटेशन गॉज फॉर्म, अगेन 60 डिग्री रोटेशन फुल इक्लिप्स फॉर्म. तो उसी का एनर्जी डायग्राम जरूरत नहीं है. चलिए आइए अब साइक्लो हेक्सेन होता है. साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मस क्या क्या हो सकता है? ऐसा. इसी का कन्फर्मर्स और क्या हो सकता है? दिस इज कॉल्ड एज चेयर फॉर्म. नाउ इसी का कन्फर्मर इज बोट के जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा. इसी का दिस इज कॉल्ड एज हाफ बोट या हाफ चेयर फॉर्म. हाफ चेयर हाफ बोट कुछ भी बोलो. देन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो. कैसे ट्विस्ट करो? ये देखो, यहाँ पर ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग. ट्विस्ट कर रहे. इसको ध्यान से देखो. ये था ऐसा, उसकी जगह पे ऐसा कर दिया. ठीक. बस ये रहा.
ये कट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट कटिंग, दे आर नॉट कटिंग, दे आर नॉट कटिंग। एक दूसरे के ऊपर से ऐसे लाइन जा रहा है, इसके ऊपर से, तो ये वाला लाइन इसके ऊपर से जा रहा है, ऐसा इसके ऊपर से, तो दिस इज ट्विस्टेड बोट फॉर्म। ये कन्फर्मर्स है, कन्फर्मर्स कन्फर्मर्स कन्फर्मर्स। रोटेशन करने के बाद, रोटेशन करने के बाद हाउ मेनी, रोटेशन करने के बाद हाउ मेनी, रोटेशन करने के बाद हाउ मेनी structures you are getting are called as conformers, है ना। उसके बाद कितने रोटेशंस करने के बाद स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज कन्फर्मर्स। ये मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? I'm going little bit faster, so I'm assuming you are knowing something. क्योंकि ये आइसोमेरिज्म आज 3 लेक्चर से चल रहा था, इसके लिए आइसोमेरिज्म 3 डेज से चल रहा था, पता है। ये प्रॉब्लम मेरे पास आया जेई में, उन्होंने बोला दिस वन x एंड y, उसके बाद बोलता है कि दिस इज h, दिस इज h, दिस वन इज CH3, दिस वन इज CH3। बोलता है x एंड y में भी, x एंड y में भी, x एंड y में भी। x एंड y में भी, बोलो। CH3। चलो देखो, मैंने एक वर्ड बोला था कि पहला ले लो क्या, दिस इज 1, दिस इज 2। उन्होंने नाम बोला था क्या, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन का कन्फर्मेशनल ऐसे कन्वर्ट करिए। चलो इधर देखो, अगर तुमने 1, सपोज दिस इज 1, तो 1 पे क्या क्या अटैच्ड है, CH3, CH3, CH3। नाउ 2 पर क्या क्या अटैच्ड है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। बट बाद में लिखो, बट भाई अगर ये 1 और ये 2 हो तब क्या होगा, ठीक। तो 1 1 और ये क्या हो गया 1, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर 2 ये वाला है तो दिस इज, बोलो, CH3, CH3। ये क्या हो जाएगा रे बाबा, C2H5। तो X C2H5, YH क्या है, CH3, Y क्या है, CH3। इसके दो दो आंसर थे, दो दो ऑप्शन हो सकते हैं। सभी लोग मोस्टली CH3 लिख देते हैं, सभी लोग मोस्टली CH3 एंड CH3 लिख देते हैं, which is not always true. Okay?
डन। चलो, बट इसी में अगर मैंने ऐसा बनाया है, CS3 HNO, अब बोलो इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? यहां से सपोज दिस इज CS3H OH H, और यू में राइट H, दिस इज CS3। बोलो अब कौन होगा? पता है ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। दिस इज फॉर्मिंग इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दे आर अपोजिट टू ईच अदर विल बी द स्टेबल वन। समझ में आ रहा है? If it is forming intramolecular hydrogen bonding, it becomes stable. If it is forming intramolecular hydrogen bonding, this becomes stable. If it is forming intramolecular hydrogen bonding, it becomes stable. सर हाँ, सर मतलब अगर मतलब अगर दो कंपाउंड है और उसमें से लेट्स से वन में अगर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है और दूसरे में अगर वो ऑपोजिट भी हुए मतलब वो स्टैगर्ड हुआ तो हाँ, स्टैगर्ड से भी ज्यादा stable स्टेबिलिटी होगा। आएगी ना इंट्रामोलिकुलर Yes. की। Yes. थैंक यू सर। Intramolecular wala will be more stable. Intramolecular wala will be more stable than the staggered one. Than the staggered one. ठीक है? बोलो, is there any problem please? अब आओ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या, थोड़ा सा क्या, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज OH, this one is OH, and now CS3 H and H, इसको कन्वर्ट करना है फिशर में। हाउ विल यू कन्वर्ट? चलो, तुम डायरेक्ट करोगे तो रॉन्ग होगा, इसीलिए क्या करो, रोटेशन 1, रोटेशन 2, रोटेशन 3 करिए। रोटेशन 1, रोटेशन 2, रोटेशन 3 करिए। तो 3 रोटेशन करने के बाद क्या हुआ? थ्री रोटेशन करने के बाद नीचे OH था। नाउ OH वाला will perfectly match to the OH, है ना? एंड CS3 वाला will perfectly match to CS3, H वाला H के हुआ। अब तुम क्या कर सकते हो? नाउ बिल्कुल यही चीज है,
OH वाला OH के ऊपर है। तुम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते थे कि ये वाला OH है और ये वाला OH है। नो, दिस इज रॉन्ग वन, दिस इज रॉन्ग वन, दिस इज रॉन्ग वन, दिस इज रॉन्ग वन। ये अब एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के अपोजिट में आ रहे हैं। समझा क्या? 180 डिग्री का रोटेशन है, 180 डिग्री का रोटेशन है। एंड 180 डिग्री के रोटेशन में इधर देखो सभी लोग, 1 2 3 4। तुम 90 डिग्री का रोटेशन करा दो, दिस बिकम 1, दिस बिकम 2 3 4। तो उठा करके देख लो, ये देख रहे हो 1 2 3 4 था आर फॉर्म, ये क्या हो गया? पहले कैसा था देख रहे हो? अगर ये एस आया तो ओरिजिनल इज आर, वाई फोर्थ प्रायोरिटी इज ऑन वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल। अभी क्या हो रहा है? 1 से 2, ये आ रहा है आर, तो ओरिजिनल इज एस। एक दूसरे के देख रहे हो अपोजिट हो गए बेटा। अगर एक दूसरे का अपोजिट हो गया, एक दूसरे का अपोजिट हो गया, फिर से एक रोटेशन कराओ। अब देखो आर 90 डिग्री रोटेशन, एस 90 डिग्री रोटेशन आर, यानी 180 डिग्री का रोटेशन कराओगे तो कंपाउंड रिमेन सेम। इसीलिए 180 डिग्री का रोटेशन करा करके देखा था, 180 डिग्री का रोटेशन करा के देखा था। यस और नो? अब मैं फिशर प्रोजेक्शन निकाल सकता हूँ, अब मैं फिशर प्रोजेक्शन निकाल सकता हूँ। ठीक, हाँ है ना? अरे बोलो भाई, कोई आवाज आ रही है? सर वो सी एस थ्री और वो एच और एच सेम साइड पे नहीं हो सकते क्या? नहीं, अभी जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है वो इसके ऊपर होगा ना। हाँ। ये एक दूसरे के क्या हो रहे हैं ना, देखो ऐसा OH के, ये अलग अलग कार्बन पे है ना, अलग अलग कार्बन पे है। तो अच्छा, ओ हो, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा सा उल्टा लिख गया है ना, सॉरी। अगर ये H है तो इधर क्या रहा होगा? H। अगर इधर CH3 है तो इधर क्या रहा होगा? CH3। H के ऊपर आ रहा है ना? यस सर। हाँ, H के ऊपर आ रहा है, एक दूसरे को कवर कर रहा है, H को कवर कर रहा है, H को कवर कर रहा है। हाँ, तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग, अब तुम लोग बुक कौन सा लेते हो प्रैक्टिस के लिए? विच बुक यू आर टेकिंग? हाँ, प्रैक्टिस के लिए विच बुक यू आर फॉलोइंग? तुम किसी भी बुक से फॉलो करो, किसी को भी करो, फिर से करो, नहीं होता है फिर से पूछो। आई विल टेल, आई विल टेल यू अगेन, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स अगेन, अगर कोई डाउट है तो। यस सर। ठीक, ओके। किसी को कोई डाउट है तो बोल सकता है, किसी को कोई डाउट है तो बोल सकता है। अथर्व? नहीं सर, नो डाउट।
नहीं है। अवनी, इज देयर एनी प्रॉब्लम? फास्ट जा रहा हूँ का? माही, नहीं सर, नहीं सर, मैं फास्ट जा रहा हूँ क्या माही? नहीं सर, इट्स ओके। हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को आ रहा है, तो विदाउट एक्सप्लेनेशन हम लोग डायरेक्ट फास्ट 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 तो नहीं, बट फिर भी लिटिल बिट ऑफ फास्ट में जा रहा हूँ, है ना? तो ठीक है, विल मीट अगेन। विल स्टार्ट विद द इंडक्टिव इफेक्ट, और बोलोगे तो इस पे प्रॉब्लम कर लेंगे, अदरवाइज विल स्टार्ट विद द इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक? यस सर। यस यस, ठीक है। तो शैल आई एंड द मीटिंग? यस सर। ठीक, चलिए, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। यस थैंक यू यस। सर। थैंक यू, थैंक यू।